present in our surrounding can be classified as pure substances and mixtures. A mixture is a combination of two or more substances which are not chemically the same and do not chemically react together. A mixture has the same properties as that of its component elements and can be separated by physical means. In a mixture of sugar and sand, even if we increase the volume of sugar or sand, the mixture remains the same. So it implies that in a mixture the components can be present in any proportions. When we dissolve common salt in a glass of water, we will obtain salt solution. Similarly, put some mud in a glass containing water and stir it well. We will obtain a mixture with the solid particles of mud dispersed in water. By carefully observing, you will find that in common salt solution, no salt particles settle down to the bottom of the glass. But in the glass containing muddy water, some solid particles settle down to the bottom of the glass. This explains that mixtures have different compositions. Accordingly, mixtures can be classified as homogeneous and heterogeneous. A homogeneous mixture has the same uniform appearance and composition throughout. Many homogeneous mixtures are commonly referred to as solutions. A solution is a mixture of two or more substances in a single phase. The substance in the largest amount is called solvent and the substance in the smallest amount is called solute. Now, consider the case of the common salt solution we have prepared. Here, water is the solvent and salt is the solute. Homogeneous solutions are classified as different types based on the solvent and the solute. 1. Liquid in liquid solution. 2. Solid in liquid solution. 3. Gas in liquid solution. In a solution of vinegar in water, both the solvent and solute are liquids, hence it is a liquid in liquid solution. In the case of common salt solution, it is a solid in liquid solution. The best example of gas in liquid solution is soda water. Soda water contains carbon dioxide gas. Let's understand heterogeneous solutions. Suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. A suspension is a mixture of large particles. The size of the particles in a suspension is of the order of 10 to the power of -5 centimeters or larger. In a suspension, the solute particles do not dissolve, but they are suspended throughout the solvent. The muddy water which we prepared is a suspension. Colloids are also heterogeneous mixtures, but they appear like a homogeneous mixture. Milk is a good example of colloids. The particle size in colloids is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. In colloids, the particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal particles cannot be seen with the naked eye because of their small size, but their presence can be observed with the help of an ultramicroscope or an electron microscope. What is the effect of light in homogeneous and heterogeneous mixtures? Let us understand how light affects a colloidal solution. When egg albumin is taken in a glass beaker and some water is added to it, we get a colloidal solution of egg albumin. If we were to shine a beam of light from a torch through the beaker, the light is scattered by the colloidal particles and the path of light can therefore be observed. The light scattering effect. In the case of a suspension, light does not pass through it. In a true solution of salt in water, we will not see the path of light as there is little scattering of light. Things to remember. Mixtures are composed of variable proportions of different substances without chemical bonding and have the same properties as that of its component elements. Homogeneous mixtures have the same uniform composition and appearance throughout, whereas heterogeneous mixtures consist of visibly different substances or phases. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and the substance present in the largest amount is called solvent, and that present in the smallest amount is called the solute.
Suspensions are a heterogeneous mixture of large particles on the order of 10 to the power of -5 in which the solute particles are suspended throughout the solvent. Colloids are heterogeneous mixtures in which the particles are uniformly distributed throughout the solution and the particle size is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. The light scattering effect shown by particles in a colloid is known as Tyndall effect. देखो उनका ठीक है, टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मीन्स बेईमान, बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार इस बात को तुमको समझना होगा खाली इसमें कि कोई भी दुकानदार जो होता है ना, वो बेईमानी वेट में करता है या पैसे में करता है। ठीक है, पैसा हमको देना है ना, पैसा हमको देना है। हम लोग मोल भाव करके कोई भी चीज को खरीदते हैं। अब कुछ कंडीशन को छोड़ के, अब तुम बोलोगे कुछ बेवकूफ लोग हैं या बच्चे हैं, उनको छोड़ करके, ठीक है। तो ये जो पैसे में है, पैसे में तो हम उतना ही देंगे जितना प्राइस हमको बन पड़ेगा लेने का। तो कोई भी दुकानदार पैसे में तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता प्रैक्टिकली, अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो। लेकिन वो भार में कर सकता है ना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कबाड़ी वाला। कभी भी कबाड़ी वाला को देखना, वो जो तौल करके लेकर के जाता है तो वो ऐसा तौलता है कि हमको पता भी नहीं चलता है और 1 किलो की जगह 1.5 किलो वजन ले लेता है। होता है कि नहीं ऐसा। और अगर तुम वापस कभी दूसरे बार फिर से वापस अगर किसी कबाड़ी वाले के पास उसी लोहा को खरीदने जाओ तो फिर से वो तुमको वेट में घपला करके देगा। अगर तुमको मान लो कि गत्ते का जरूरत पड़ गया तो तुम कार्टून लेने कहाँ जाओगे? कबाड़ी वाला के पास जाओगे, देखोगे सबसे पहले कार्टून वहां मिल जाता है, इजिली मिल जाता है। कॉपी खरीदने हम लोग कबाड़ी वाला के पास जाते थे तो लोग वहां पर भी इजिली घपला कर लेता है, क्योंकि उनको पता है कि घपला किया कैसे जाता है। इसीलिए जो बेईमानी होता है वो हमेशा वेट में होता है। बोल रहे कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार है, उसने प्रॉमिस किया, क्या वादा किया उसने ये वादा किया कि वो अपने सामान को बेचेगा, सीपी पे बेचेगा, वो प्रॉफिट नहीं लेगा, कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा। हम मान लेते हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 100 ग्राम कोई वस्तु है, ठीक है, उसका सीपी जो है 100 रुपए है। सीपी कितना है? 100 रुपए। तो हमको बताओ कि 1 ग्राम का क्या होगा, तो तुम बोलोगे 1 रुपए। यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं है ना इस बात में? इस बात में किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, वो कह रहा है कि वो सीपी पे बेचेगा। अगर 100 रुपया सीपी है तो एसपी क्या हो जाएगा मेरा? एसपी भी 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि वो बोल ही रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो अपने वस्तु को सीपी में बेचेगा। सीपी 100 रुपया है तो एसपी भी 100 रुपया होगा। इस बात पे कोई दिक्कत है किसी को भी? क्योंकि वो दुकानदार ही वादा कर रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस में बेचेंगे, नहीं है। लेकिन उसने तो, दुकानदार ने बोल दिया कि हम जो सामान बेच रहे हैं ना 100 रुपए में, वो हम कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहे हैं। कई बार तुम लोग देखना, दुकान बाहर जाओगे तो बोलेगा हम लागत में तुमको दे रहे हैं, 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमा रहे। तो मुनाफा कहाँ कमा रहे? तो मुनाफा यहाँ कमा रहे, ऐसे मुनाफा कमा रहे। अब क्या किया है कि उसने लेस वेट किया, 30% वेट में मार लिया। मीन्स 100 ग्राम की जगह कितना ग्राम दिया? 70 ग्राम।
100 ग्राम की जगह कितना ग्राम दिया, 70 ग्राम। 1 ग्राम का वैल्यू 1 रुपया, 70 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 रुपया। ये है उसका न्यू सीपी। सीपी है 70 रुपया, बेच रहा है 100 रुपए में, प्रॉफिट कितना हुआ 30 का। 30 का प्रॉफिट 70 में, तो 100 पे कितना, 0 0 काट दो, 300/7, इसको डिवाइड कर देना, जो आएगा वो आंसर। बताओ अगर कहीं दिक्कत है तो। 42.6/7% आएगा। ठीक है, 42.6/7% आएगा। ये क्वेश्चन 960 ग्राम है ना, तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम कोई वस्तु है। ठीक है, और इसका जो सीपी है वो 1000 रुपए है। ठीक है, सीपी क्या है, 1000 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि 1000 रुपए की चीज को 1000 रुपए में ही हम बेच रहे हैं। 1000 रुपए की चीज को हम 1000 रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ पर सबको कह रहा है कि हम 1000 रुपए वाली चीज को 1000 में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है इधर कि 960 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 960 ग्राम, मीन्स 960 रुपए का, 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 960 ग्राम का 960 रुपया। ये है उसका न्यू सीपी। 960 रुपए के सामान को वो 1000 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का। 40 का प्रॉफिट 960 में, तो 100 पे कितना, 0 से 0 कट जाएगा तुम्हारा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 10, कितना आ गया, 1/24, 124 ऐसे कुछ आया, इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट कर दिया, 4 1/6 आएगा। उसमें वो कह रहा है कि हम अपना सामान बेच रहे हैं। हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम कोई सामान है, उसका जो सीपी है वो 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए, किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पर। वो बोल रहा है कि 44% लॉस में बेच रहा है, तो जितना मेरे को खरीदा उससे 44% लॉस, में 40% उसमें हमको माइनस करना है, तो बेचेगा कितना में, एसपी क्या हो जाएगा, 100 का 44% कितना होता है हम लोग का, 44 होता है। 44 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 56, है ना। 56 रुपीज में बेच रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वेट में 30% मार ले रहा है। ठीक है, वेट में जो है 30% मार ले रहा, तो 100 ग्राम का वैल्यू 100 रुपया, तो 30 ग्राम मार ले रहा, तो दे कितना रहा है भाई, 70 ग्राम। तो इस 70 ग्राम का वैल्यू क्या होगा, 70 रुपए, है ना। अब ये वो एक्चुअल वैल्यू, 70 रुपए वाला जो सामान है वो 56 में दे रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, 14 का। तो ये जो 14 का लॉस हो रहा है कितना पे, 70 पर, तो 100 पर कितना होगा, 14 5 70, 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। 20%। शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। उसने प्रॉमिस किया था कि 10% प्रॉफिट में बेचेगा। मान लेते हैं कि 100 ग्राम कोई वस्तु है, उसको 100 रुपए में बेच रहा है, तो सीपी कितना है भाई, 100 रुपए। अब वो क्या कहा, इसका जो एसपी होगा क्या होगा, 10% प्रॉफिट पर होगा, है ना। 10% प्रॉफिट पे मतलब वो इसको 110 में बेचेगा। 10% का मतलब क्या हो गया हम लोग का, 1/10, तो 100 का 1/10 अगर ऐड करेंगे तो 110 होगा एसपी, है ना। सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी होता है, 10% प्रॉफिट। लेकिन वो क्या बदमाशी किया कि वेट में 20% कम दिया। ठीक है, वेट में 20% कम दिया, तो 20%, 1 ग्राम का वैल्यू 1 रुपया, इसका 20% कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, तो 20 ग्राम का 20 रुपया, है ना। 20 ग्राम का 20 रुपए, तो कितना माना, 80। अब ये हुआ सीपी। अब 80 वाला सामान को वो कितना में दे रहा है, 110 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है हम लोग का, 30 का। 30 का प्रॉफिट कितना, 80 पे, तो 100 पे कितना होगा, 300/8, डिवाइड करना, जो आया वो आंसर रहेगा। प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट, मींस 1% प्रॉफिट पे बेचेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 ग्राम कोई वस्तु है, उसका जो कीमत है वो 100 रुपए, सीपी कितना, 100 रुपए। प्रॉफिट को हम बाद में देखते हैं। फिर क्या कह रहा है पता है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, 20% कम वेट दे रहा है, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस करते तो 80,
कॉस्ट क्या आ जाएगा 80 रुपीज। 80 ग्राम दे रहा है ना, तो 1 ग्राम का 1 रुपया, 80 ग्राम का 80 रुपए। और गेन के बारे में कुछ बात कर रहा है 37/2, 37/2, तो 37/2 कितना परसेंट होता है हम लोग का 3/8, ठीक है 3/8% होता है, 3/80 होता है ना, 37/2 3/80 होता है, ठीक है 37/2 125, ठीक है 3/8। इसका मतलब ये कॉस्ट है, ये परसेंटेज प्रॉफिट है, ठीक है ये कॉस्ट है, ये वाला जो हम लोग का ये प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अगर 8 है तो सेल एसपी कितना हो जाएगा मेरा, कॉस्ट अगर 8 यूनिट है, ध्यान रखना 8 यूनिट है और 3 का प्रॉफिट है, तो एसपी क्या हो जाएगा हम लोग का 11। अब यहाँ पे देखो 8 यूनिट मेरा इक्वल है कितना के 80 के, 8 यूनिट इक्वल है 80 रुपीज के, तो 1 यूनिट कितना का होगा 10 के, है ना। तो 11 यूनिट का अगर हम निकाले एसपी हम निकाले तो कितना होगा इंटू 10, 110। देखो एक बार इसको बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स प्रॉफिट क्या होगा, तो ये तो प्रॉफिट है हम लोगों का, है ना, ये 10% ही हम लोगों का प्रॉफिट है, 10 आया है। क्योंकि वो बोल ही रहा है ना, देखो ऊपर में ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट, ये वाला सीपी था, ये छोड़ देना। अब इधर देखना है, ये 100 रुपया सीपी था, अब ये एसपी आया 110 रुपया, तो 100 में 10 कितना परसेंट होगा 10% होगा, है ना। अब इस सीपी को नहीं लेना है हमको, सिर्फ वहां बात करना है, क्योंकि ऊपर का एक लाइन को खाली ध्यान रखो। अब ये कह रहा है कि शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट, तो वो निकालना है हमको, बात समझे। बहुत बढ़िया, देखो मान लेते कि 100 ग्राम का कोई वस्तु है, उसको जो है 100 रुपया सीपी पे बेची, 100 रुपया सीपी पे है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन लॉस का भी बात कर रहा है कि इसमें और इसमें जो आ रहा है वो X% का लॉस है, तो X% का लॉस ही हमको निकालना है। ही यूजेस 20% लॉस वेट, 100 ग्राम था, 100 ग्राम में 20%, 20 ग्राम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80 ग्राम, और 80 ग्राम का कितना हो जाएगा 80 रुपए। यहाँ पे किसी को भी दिक्कत नहीं है, बताया हुआ है। फिर लास्ट में कह रहा है कि ये जो गेन है, ये गेन है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का कॉस्ट है तो 1 का प्रॉफिट है तो 6 का सेल है, ठीक है। तो 5 का कॉस्ट है, सेल कितने का है हम लोग का 6 का। अब समझो इसको, 5 यूनिट इक्वल 80 के, तो 1 यूनिट कितना का होगा 16 का, है ना। इसीलिए 6 यूनिट कितना का होगा 96 का, 100 का सीपी है, 96 का सेल है, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा 100 पे, अंतर कितना है 4, तो 100 पे कितना हो जाएगा 4% लॉस। बताओ, लेस वेट होगा, लेस वेट होगा। मान लेते 100 ग्राम कोई प्रोडक्ट है, उसका जो सीपीयू कितना है 100 रुपए, और एसपी के बारे में बोल रहा है कि X% का लॉस है, तो यही हमको निकालना है। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि वो क्या किया है कि 25% लेस वेट कर रहा है, मतलब 100 ग्राम की जगह 75 ग्राम दे रहा है, तो 75 ग्राम का 75 रुपए, है ना। और गेन का यहाँ बात करें तो 20% हो जाता है हम लोगों का 1/5 मीन्स ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, एसपी है 6 एसपी है,
एसपी है हम लोग का 6, तो सीपी कितना है भाई 5, 15 गुना, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, 15 छिक 90, तो एसपी है 90, सीपी है 100, तो लॉस कितना का हो जाएगा हम लोग का 10% का, है ना। इसको ऐसे समझते हैं कि 100 ग्राम, 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम का सीपी कितना है 100 रुपए, ठीक है। उसको इतना लेना था, लेकिन वो क्या किया कि 20% चीटिंग किया, मीन्स 20% ज्यादा लिया। अब वो क्या कर रहा है कि 120 ग्राम ले रहा है, कितने में 100 रुपए में। बताओ इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब इसके बाद हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है कि खरीदने समय का तो चीटिंग हो गया, ये खरीदने के समय का चीटिंग, बाइंग के टाइम का, ठीक है। लेकिन जब सेलिंग का टाइम आया तो उसने बहुत भयानक चीटिंग किया, बहुत भयानक। क्या किया कि 40% मार लिया, 100 ग्राम का है जो होगा 100 ग्राम पे होगा, 40% मार दिया, मीन्स 60 ग्राम दिया। लेकिन जो खरीदने वाला उसको लगा ये 100 ग्राम है, और उसको क्या बोला कि हम इसको 10% लॉस पे देंगे, मतलब 100 रुपए वाला जो सामान है 100 ग्राम में, उसको हम 90 रुपए में देंगे। बताओ किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें किसी भी तरह का? हमेशा याद रखना कि हम लोग जो सीपी और एसपी जो भी माइनस करते हैं उसमें क्वांटिटी इक्वल होता है। फिर से समझिए एक बार, 100 ग्राम, हम माने कि 100 ग्राम कोई वस्तु, उसका सीपी 100 रुपए, ठीक है। वो जो बेचने वाला जो सेलर था ना, वो सामान खरीदने के लिए गया, हमको बेचने के लिए। भाई हम किसी से अगर सामान खरीद रहे हो, वो कहीं ना कहीं से तो खरीदा होगा, तो वो जहां से खरीदा ना सामान, उससे 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम ले लिया 100 रुपए में, 20% का चीट वो यहाँ किया, ठीक है। जब वो हमको बेचा तो 100 ग्राम की जगह 40 ग्राम कम दिया, माने 60 ग्राम दिया, और ये बोल दिया, ये 60 ग्राम देकर के ये बोल दिया कि हम 100 ग्राम में दिए, 100 ग्राम दिए, और साथ साथ ये भी बोल रहा है कि हम 10% लॉस में दे रहे। तो सीपी कितना है 100 रुपए, तो 10% लॉस में देगा तो कितना में देगा 90 रुपए में, ठीक है। और हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं क्वांटिटी इक्वल होता है, देखो यहाँ क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो क्वांटिटी को पहले इक्वल कर लेंगे। ये 120 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से कर लो, तो ये हो गया 180, ये हो गया 100, कितना का प्रॉफिट हो गया 80 का, 80 का 100 में प्रॉफिट मतलब 80%, makes his goods at 40% above the CP, ठीक है। सीपी है और ये मार्क प्राइस है, सीपी मान लेते हैं 100, 40% above मीन्स 140, 25% का डिस्काउंट है, तो एसपी क्या हो जाएगा इसका 25% मीन्स 1/4, 3/4 इसका क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 5 20 माइनस का 35, तो एसपी हो जाएगा 105, सीपी 100 है, एसपी 105 है, तो प्रॉफिट कितने का है, 5 का 100 में प्रॉफिट मतलब 5%, है ना। प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 करेंगे तो वही आएगा, 100 दिया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 5%। यहां तक सिर्फ इसी चीज को बताने के लिए था कि वो जो कॉस्ट प्राइस है उसको वो 5% प्रॉफिट रख के बेच रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उतार लिए इसको, उतार लिए हो गए। अब यहां पर देखो, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का जो सीपी है वो 1000 रुपए है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि 5% प्रॉफिट कमा के दे रहा है, ये जो 5% निकला, तो 1000 का 5% क्या हो जाएगा हम लोग का 50 रुपए, तो एसपी क्या होगा, एसपी हो जाएगा 1050। लेकिन चोरी कहाँ कर रहा है भाई, पेट में कर रहा है,
1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 800 ग्राम। 1000 ग्राम का 1000 रुपया, तो 800 ग्राम का 800 रुपया, है ना? 800 ग्राम का 800 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम लोग का? 250। ये जो 250 का प्रॉफिट है कितना पे है? 800 पे। तो 100 पे कितना होगा? ये कैलकुलेशन निकाल लेना। डिवाइड इसको करोगे तो हो जाएगा 24, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 31.25%। ये वाला जो हम लोग बनाए ना, स्टार्टिंग वाला, ये तो ऐसे ही था कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 1, शॉपकीपर मेक्स हिज गुड्स 40% अबव द सीपी। 40% से ज्यादा सीपी का, तो सीपी को मेक्स माने तो मार्क प्राइस हो गया 140। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट देते हैं उसके बाद सेलिंग प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट दिए कितना का? 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। तो आएगा 35। 35 डिस्काउंट दिए, बचा क्या? 105। तो सेलिंग प्राइस आया 105। सीपी है 100 का, बेच रहा है 105 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? 5% का प्रॉफिट। ये तो था सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए, परसेंटेज। अब हमको यहां तक कोई मतलब नहीं है। अब यहां से तुम लोग का काम है। अब वो कह रहा है कि at the time of selling the goods he uses 800 gram weight instead of 1 kg। 1 kg की जगह 800 ग्राम दे रहा है। तो मान ले कि 1 kg को 1000 ग्राम है, ठीक है? 1000 ग्राम जो का सीपी 1000 रुपए है। तो 5% का प्रॉफिट यहां से हम निकाले थे, तो 5% का प्रॉफिट करेंगे तो क्या आएगा? 1050 आएगा। सेलिंग प्राइस हो गया 1050 रुपए, ठीक है? अब यहाँ वो क्या किया कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दिया। तो 1 ग्राम का 1 रुपया, 800 ग्राम का 800 रुपए। 800 ग्राम के सामान को 1050 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट आया 250 रुपए। 250 का प्रॉफिट है 800 पे, तो 100 पे कितना? वही तो, शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग एट 10%। मान लेते हैं कि 100 ग्राम कोई वस्तु है, ठीक है? उसका सीपी कितना है भाई? 100 रुपए। उसने क्या किया? खरीदते समय चीटिंग किया 10% का, ठीक है? 110 ग्राम लिया, कितने में? 100 रुपए में। फिर क्या कह रहा है? एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। और फिर उसने चीटिंग किया कब? बेचने के समय। 100 ग्राम की जगह कितना ग्राम दिया भाई? 90 ग्राम दिया, है ना? और कुछ नहीं लिखा है। चीटिंग एट 10% प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, एट 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, फाइंड द प्रॉफिट। कुछ नहीं लिखा है, तो हम मान लेंगे कि उसने सीपी पे ही दिया, है ना? मान लेंगे कि सीपी पे ही दिया है। 90 ग्राम में सीपी पे ही दिया है, ठीक है? अब देखो, यहाँ 110 है, यहाँ 90 है। इसको तुमको ग्राम को, ग्राम जो है इसको तो इक्वल करना पड़ेगा ना। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से करेंगे। ऐसा होता है कि यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 900 हो गया, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 1100। मीन्स 900 का सामान 1100 में दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 200 का। 200 का प्रॉफिट कितना है? 900 में। तो 100 पे कितना होगा? कैलकुलेशन कर लेना इसका, जो है कितना आया है? 22/9% ना? ठीक है, कैलकुलेशन 22/9% बिल्कुल सही है। बोलो 20% एवब, है ना? सीपी से तो मानते हैं सीपी है, ये एमपी है। सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस 20% ज्यादा होगा, मीन्स 120। और डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है 10%। 10% मीन्स 1/10। 10% मीन्स 12 रुपए। 12 रुपए का डिस्काउंट देगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 108, है ना? तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 8। 8 कितना? 100 पर, है ना? तो 100 कितना होगा? 8%। अब बन जाएगा यहां से। देखो क्या कह रहा है? At the time of selling the goods, he uses 900 gram weight। हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का जो सीपी है वो 1000 रुपए है, ठीक है?
उसने क्या बदमाशी किया कि खरीदते समय, खुद का खरीदते समय 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम ज्यादा ले लिया, कितना में, 1000 रुपए में ही। ठीक है। और जब हमको बेचा ना, तो हमको उसने 900 ग्राम लिया बदमाशी से, 900 ग्राम लिया ये बोल करके कि हम आपको पूरा 1 kg दे रहे हैं, और हमसे प्रॉफिट भी ले लिया। कितना प्रॉफिट ले लिया, 8% का। 1000 का 8% कितना हो जाएगा, 80 रुपए। 1080 रुपए। ठीक है। अब इन दोनों को तो इक्वल करना होगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 11 से करो, यहाँ 9 से किया तो यहाँ भी 9 से, यहाँ 11 से किया तो भाई यहाँ भी 11 से। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9000, 11 0 88, 11 में 11, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 2880 डिवाइडेड बाय सीपी 9000 इंटू का 100। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32%।